ये देखो, ये क्वेश्चन पढ़ना, 2015 क्या कहता है? The ancient civilization in Indian subcontinent, with Indus Valley civilization, because why Indian subcontinent? Because it was in Pakistan as well as in India. So Indian subcontinent differed from those of Egypt, Mesopotamia and Greece in that its culture and tradition have been preserved without a breakdown to the present day. Question 15 marks का डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको पूछा. द सेम थिंग एज कल्चर, प्रिजर्वेंस ऑफ कल्चर, कल्चर एंड ट्रेडिशन. दिस इज द थिंग जो हमें सिस्टम पता हो. हाउ कंटिन्यूटी, चेंज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन. क्लियर? जयपुर में अभी गुजरात में तुम अभी भी जाओगे ना, इन विलेजेस जो घर बनाने का स्टाइल है ना, द घड़ी कॉलेज, द सेम विच वॉज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोथल, सुतकोटड़ा, सेम घर आज भी वैसे ही बन रहा है. यूज ऑफ ब्रिक्स, घरों में किसका कर रहे हो यूज? ब्रिक्स कर रहे हो. अर्थवेयर, घर में मिट्टी के घड़े नहीं होते, होते हैं ना रेड एंड ब्लैक, आज भी है ना. एम्यूलेट्स पहनते हो ना, आज भी पहनते हो. एंकलेट्स, नेकलेसेस, आर्मलेस, बैंगल्स, काली बंगा, ब्लैक बैंगल्स, पीली बंगा, येलो बैंगल्स, ये मेन गढ़ थे बनाने के. तो यहां पर काली चूड़ियां मिली थी तो नाम बना दिया काली बंगन, पीली मिली तो पीली बंगन. So we were discussing about interdisciplinary and intradisciplinary approach. That is important here, right? So one this, second this. So when we shall discuss about the topics, we shall start with this one: history as inter, history as intra, polity as inter, polity as intra approach. Now about the syllabus. So we were discussing about history yesterday. So we started with the first part was ancient. As we discussed that ancient, the first topic of ancient, that start from right, Stone Age. Why so? As we discussed, what we have discussed, why it is called Stone Age? Because the representation of culture. As we discussed, this history belong to the prehistory. In prehistory, you don't have any written record. What you have? Physically preserved. So physically preserved में what was the main thing which were preserved was the stone tools. So with the different stone tools, we divided Stone Age in various stages with the advancement of tools in Stone Age that start from 5 to 3 lakh BC to 4000 BC. 5 to 3 lakh to 4000 BC. Stone Age. Right? An age where culture representation was through the tools. Because we are not aware about their belief, tradition, morals, customs, कुछ पता नहीं है, because we don't have any written history. कुछ नहीं मिला, क्या मिला? Tools मिले. So on the basis of tools, right, what we have done, हमने उनकी culture को details से describe किया. So in stone tools, there are 3 parts. 3 अलग अलग stone ages है. First is called as Paleolithic, second is Mesolithic, and third is Neolithic. Paleo means ancient. Paleo is a Greek word called as ancient. So Paleo means the ancient Stone Age. Middle Stone Age
and new stone age. Paleo, Meso, Neo. Right? Later on, what we have done, this is Paleo, right? Paleo ko we have divided into three parts. Lower Paleo, middle Paleo, and upper Paleo. And everything was based on tools, nothing else. Tools. Paleo was an era where core tools were available more. Core क्या होता है? You have this stone, right? I have this stone in my hand. अब मेरे पास एक तरीका है, I am going to use it as a whole. या क्या करूं इन स्टोन में? I can use in this way, in this way, right? Struck by hammer, a soft hammer. मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक फ्लेक बाहर निकाल देता हूं, राइट, एंड वन साइड, दोनों बाहर निकाल देता हूं, बोथ साइड. दिस इज कॉल्ड चॉपर चॉपिंग. व्हाट इज कॉल्ड? चॉपर चॉपिंग टूल्स, काटने और उसके लिए. सो दीज वर द पार्ट के जब अब मैं क्या कर रहा हूं, जो फ्लेक निकल रहा है ना उसको मैं फेंक रहा हूं. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज फ्लेक्स. द कोर वन उसको मैं यूज कर रहा हूं. बट व्हाट्स द डिसएडवांटेज? कि वो कोर बहुत जल्दी खराब हो जाएगा. 2-3 बार यूज किया, खत्म, फेंक दो, नया टूल लो. सो एवरी टाइम आई नीड इन सर्च ऑफ अ न्यू कोर, अ न्यू स्टोन, अ न्यू रॉक. तो ये सबसे प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है, यूजिंग ऑफ कोर टूल्स. एंड दिस वॉज द लोअर. मिडिल में मुझ में थोड़ी बुद्धि आई. वाई सो? रेस अ कंप्लीट स्पीशीज चेंज. इन लोअर पैलियोलिथिक इट वाज द टाइम ऑफ होमो इरेक्टस. हम आगे बड़ा डिस्कस करेंगे. होमो इरेक्टस. हियर इट वाज निएंडरथल, द मिस्टीरियस मैन. निएंडरथल, अ वेरी क्लेवर, स्ट्रॉन्ग, अ मैन ऑफ कोल्ड रीजन. यूरोप, द होल यूरोप वाज ऑक्यूपाइड बाय द निएंडरथल्स. What they have done, instead of using core tools, they use these flakes. Flakes, knives, चाकू बना लिया, charts, blades, छोटे छोटे स्टोर बना रहे. यूज ऑफ ब्लेड्स. उसके बाद आता है अपर. अब जो तुम्हारे पास ब्लेड है, मैंने उसको क्या किया, आई जस्ट मेड इट मोर फाइन विद द पॉइंट्स. एकदम पतला बना दिया, छोटा, एकदम छोटा, ताकि मैं हाथ में उसको लेके और इतना इतना यूज कर सकूं एज ए नाइफ. दिस इज कॉल्ड द ब्लेड. एंड दिस वाज द टाइम ऑफ होमो सैपियंस. होमो सैपियंस, राइट? 30,000 BC. होमो सैपियंस. बी द लास्ट स्पीसीज, द होमो सैपियंस. वो लोग यहां स्टार्ट हो रहे हैं. एंड देन द पीरियड ऑफ मीजोलिथिक. Meso is all about the microlith. Micro means 3 centimeter. Small tools of 3 centimeters, 1 to 3 centimeters. क्या यूज करना है? एरोहेड, राइट? एरोहेड यूज कर रहे हो, राइट? सॉ कटर आपने छोटा सा बनाया, उसके अंदर छोटे छोटे लगा लिए, अब पूरा आप क्रॉप को निकाल सकते हो. आप एरोहेड यूज कर रहे हो. नाउ यू कैन हंट वेल. और लास्ट आता है दैट इज Neo. This was a period of revolution where a hunter and food gatherer converted into the first revolution in terms of economy, from gathering to producing. And when economy will change, society will change, quality will change.
So this was an era of change. In paleo continuity, meso continuity, neo continuity, but in neo, it got changed. And afterwards, the second stage started when man recognized and discovered the metal. And first metal which was invented was copper. Why copper? Copper is the metal जो आपको बाहर लैंड पे भी मिल जाएगा, आउटर सरफेस पे भी मिल जाएगा, राइट? यू नीड नॉट टू डिग आउट इट, प्योर फॉर्म में बाहर आ जाएगा. एंड सेकेंड, इट इज इजी टू मेल्ट इट, मोल्ड इट. तो द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द ह्यूमन वाज कॉपर. क्लियर? बट वी आर नॉट 100% श्योर. मैं फिर बोल रहा हूं, इन एंशिएंट पीरियड में आर्कियोलॉजी की एविडेंसेस जो है, only 5% of Indus Valley civilization has been excavated. 5% only. Why so? Because now it is beneath the surface around 39 feet, 40 feet. 1 फीट को खोदने में 15.5 लाख का खर्चा है. In a just area of 500 मीटर. तुमको 1.39 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे ढूंढना है. $1 बिलियन का आपको फंड चाहिए, वो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया. Right? Because what happens when settlements happens na, it never happens one time. It goes layer by layer. Like if you go with the Mehergarh, Kalibanga, in these areas, settlement always happened in layers. 4,000 years, 3,000, 2,000, 1,000, 1,500, 1,000. अब वो सारी लेयर्स एक साथ है, राइट? अब एक एक लेयर को अलग करना नॉट पॉसिबल, बिकॉज वहां पे प्री हड़प्पन भी थे, हड़प्पन भी है, पोस्ट हड़प्पन भी है, उसके बाद में वैदिक भी है, पोस्ट वैदिक भी है, गोज ऑन. तो वो लेयर्स जो है वो बहुत दिक्कत करता है. इसको बोलते हैं स्ट्रेटिग्राफी. स्ट्रेटिग्राफी, स्टडी ऑफ रॉक्स फॉर द सेटलमेंट्स, स्ट्रेटिग्राफिक. सो यू नीड दैट स्ट्रेटिग्राफिक. तो जब ये आर्कियोलॉजिकल लोग करते हैं ना, तो वो लेयर्स देखते हैं. जो सबसे नीचे लेयर होगी द ओल्डेस्ट वन, अपर विल बी द न्यूएस्ट वन. तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट आते हैं. एंड देन इट शोज के हाउ कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स हैपन इन दीज एरिया एंड व्हाट चेंजेस अकर्ड इन सेटलमेंट्स, राइट, इन ह्यूमन, इन देयर कल्चर. एंड कल्चर का डिनोशन क्या है? पॉलिटी को कैसे पता करोगे तुम? लिखा हुआ तो कुछ है ही नहीं. तो हाउ यू कैन से कि एक पॉलिटिकल सिस्टम था या कोई सिस्टम, कैसे पता करोगे? कैसे पता कैसे लगाओगे हायरार्की का? सबसे सिंपल फॉर्मूला है यूनिफॉर्मिटी. क्या फॉर्मूला है? Uniformity. If you find uniformity at a larger area, say same type of bricks, same type of seals, same types of earthware, what it says? And central organized system which controls everything. वरना possible है कि in गुजरात, in कालीबंगा, in हड़प्पा, in मोहनजोदड़ो, in मांडा, in आलमगीरपुर, दहिमाबाद, सुतका जेंदोर, मीन्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, एक ही तरह के अर्थवेयर मिले. इज इट पॉसिबल? इट कैन बी पॉसिबल इन वन मेथड ओनली, इफ देयर वुड बी ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम विच डिस्ट्रीब्यूट्स कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल थिंग्स, राइट? आपको पूरे इंडिया में एक जैसी करेंसी मिल रही है, क्या बता रहा है? सिंगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप है ना? सिंगल तुम्हारी करेंसी है. ये अगर कल को पूरा दब जाए और तुम्हारी करेंसी एक जैसी मिले तो वो लोग क्या कहेंगे? देयर वॉज अ सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम विच कंट्रोल्ड द सेम थिंग हैपेंड इन हड़प्पन्स. हमारे पास एजम्पशंस के अलावा कुछ नहीं है. व्हाट कल्चरल रिमेनिंग्स वी फाउंड ऑन द बेसिस दैट वी एक्वायर. यू फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस,
Two different part, citadel, lower town. Citadel में you have larger buildings. You have the great bath, assembly hall, temples, 12-story houses, buildings, and in lower town you find common houses of 1 or 2 or 3 rooms. आप क्या कहोगे? Class system was there, hierarchy system was there, aristocrat, nobles and commoners. Right? फर्क है. यूनिफॉर्मिटी इन ब्रिक्स. देखो पूरे हड़प्पन में यू विल फाइंड अ सिंगल टाइप ऑफ ब्रिक 4:2:1. राइट? 4:2:1 मीन्स 28 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर ब्रिक्स एवरीवेयर एंड baked bricks. This was the time when in Mesopotamia, in Egypt, they used dried bricks. Dried में क्या करते हैं? ब्रिक को बनाया और धूप में सुखा दिया. And they baked in fire. तो तुम्हारी ब्रिक ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा यूनिफॉर्म है, तो वो they were on the peak of their civilization, इजिप्ट में. But in terms of material, ये बहुत पावरफुल थे. So this is called the uniformity बताती है हमें. और अगर हमें देखना हो कि अब कोई सिस्टम नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, तो कैसे देखेंगे? डिफरेंस. एक तरह की ब्रिक्स नहीं है, एक तरह के अर्थवेयर नहीं है. जो ब्रिक्स थी बार बार यूज की जा रही है, द सेम ब्रिक्स इज यूजिंग. इसका मतलब ऑथोरिटी सिस्टम खत्म हो गया. दिस इज कॉल्ड द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन्स. मैच्योर में यूनिफॉर्मिटी और डिक्लाइन में डिसफॉर्मिटी. सो यूनिफॉर्मिटी कन्वर्ट इनटू डिसफॉर्मिटी. ये फर्क आता है. क्लियर? सो द एज वॉज द कॉपर, फर्स्ट मेटल. नाउ टू डिफरेंट थिंग, हैविंग मेटल, यूजिंग मेटल. फर्क है. हैविंग मेटल यू डू नॉट रिक्वायर इन टेक्नोलॉजी, बट यूजिंग मेटल रिक्वायर टेक्नोलॉजी. मेटल तुमको कब पहचान लिया था तुमने? 3000 BC में. कब देखा? 3000. ahad, Khetri, Banas river, you have plentiful of copper with yourself, and this copper was imported to Harappans, but they did not have the technology to use copper in tools and weapons. Right? Vedic people were known about iron. We discussed the later Vedic people were known to iron, जिसको बोलते थे श्यामा ऐसा, कृष्ण ऐसा, but they were not able to use that in field work, in agriculture. उनका प्लो अभी भी मिट्टी का बना हुआ था, अभी भी लकड़ी का था. तो इसके लिए उनको चाहिए कैसी? a very loose soil, जहां पे भी हार्ड सॉइल होगी सर्वाइव नहीं कर सकते. But in the era of Mahajan Padas, what happened? Change in technology. Right? Because they reached in the area of Magadha, where they found the melting system. Smelters बहुत थे वहां पे, वो स्मेल्टिंग करना जानते थे. And these people were knew about the agriculture. तो उन्होंने प्लो को किससे चेंज किया? आयरन प्लो. और जैसे ही आयरन प्लो आया, पूरा के पूरा सिस्टम चेंज हो गया. नाउ यू कैन कल्टिवेट मोर एंड मोर लैंड. वाटर है, सॉइल है, टेक्नोलॉजी है. स्पट, सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया हो गया. अर्बन डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया महाजन पदाच. काशी, कौशल, अंग, मगध, श्रावस्ती, अवंती, तुम्हारे नगर खड़े हो गए. एंड देन ओरिजिन ऑफ स्टेट्स. फर्स्ट कौन था? मगधा. द फर्स्ट स्टेट, ऑर्गेनाइज स्टेट वाज मगधा. और यही मगध था जिसमें आगे जाके कौन खड़े हुए? मौर्य. द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, द मौर्यन एम्पायर. एंड किस चीज का चेंज हो रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, व्हाट चेंजेस आर देयर? फर्स्ट चेंज इन टेक्नोलॉजी, सेकंड वाज चेंज इन राइट, थर्ड वाज चेंज इन, इसके लिए क्या चेंज हुआ? पॉपुलेशन. वाई सो? क्योंकि इन दोनों के बढ़ने से क्या बढ़ा? एक ही तो लड़ाई थी सारी, किसकी थी? सरप्लस.
सब्सिस्टेंस इकोनॉमी क्या होती है? व्हाट इज सब्सिस्टेंस इकोनॉमी? Survive, right? Producing to survive. They can produce, but they cannot. They do not produce. Subsistence economy. And when a person cross this subsistence economy, ये किस पे जाता है? Surplus. And surplus का फायदा क्या है? What is the benefit of surplus? कैसे? Say we all are indus to the agricultural activities or pastoral activities. Now I have surplus in my hand. तो उसका मुझे फायदा क्या हो रहा है? यस, नई चीज शुरू हो रही है. नॉन कल्टिवेटर्स ग्रुप बड़े हो रहे हैं, राइट? नाउ देयर विल बी पीपल दे डू नॉट रिक्वायर टू गो टू द फील्ड, दे कैन इंडल्ज टू द अदर ऑक्यूपेशंस. सो rising of other occupations shows there is plentiful of surplus, and those people will give rise to new centers, right, beyond the boundary of this agricultural land. अब तुम्हें एग्री लैंड में जरूरत नहीं है, तुम कहीं और जाकर ट्रेड पॉइंट्स पे अपने को सेटल करोगे ना? बिल्कुल सीधी बात है, बिल्कुल करोगे, बिकॉज नाउ यू नीड ट्रेडिंग. तो नाउ ट्रेड पोर्ट्स विल डेवलप. सुदकोटड़ा, लोथल, उसके बाद आपका अगर बीच में आए तो अवंती, कौन सा, गिरिव्रजा, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कलिंगा, अंग. ये कल्टीवेटिंग लैंड नहीं है, ट्रेडर्स पॉइंट है. श्रावस्ती, बिकॉज नाउ यू प्लेंटीफुल, पीछे से आ रहा है, बैक आ रहा है. New occupations. So where you find these occupations, abundant occupations which show surplus, and these occupational people give rise to new urban centers. Urban centers क्या होता है? Centers of trade, economy, commerce, right? Urban area किन एरिया कहते हैं? जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व है ना? जैसे आपके जयपुर में कितनी खेती होती है? पास के इलाकों में होती है. देयर आर विलेजेस एंड यू आर टाउन. Then town to after you have city, then you have metro, right? On the basis of these activities. So this was the thing जो बढ़ता जा रहा है with the course of time. और सारी पॉलिटिकल लड़ाई किससे शुरू होगी? Who will occupy this? Who will control this? That's it. Polity begins. Polity begins from here. You have surplus, right? You are cultivators. You want now security, right? Now those people who were skillful, technological enabled, जैसे तुम्हारे पास बहुत सारा धान पैदा हो गया, अनाज पैदा हो गया, बट तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं है, तुम किसके पास जाओगे? वेयर हाउसेस. Those people who have warehouses, those who could export, उनके पास जाओगे ना? इसी में those who could protect that, secure that, तो बस वहां पे सिस्टम स्टार्ट हो गए, पॉलिटिकल के सिस्टम. इट मे बी ट्रेडर्स, इट मे बी ट्रेडर्स, जो हम इंडस में बात करते हैं कि मे बी द ट्रेडर्स वर्किंग्स. सरप्लस उनके पास था, सारा के सारा ट्रेडिंग है. वाई सो? बिकॉज यू फाइंड ग्रेनरीज एवरीवेयर, वेयर हाउसेज, ग्रेनरीज इन अपर, इन सिटाडेल. दैट शोज दैट यस, यहां पे कुछ ट्रेडर्स किंग हो सकते हैं. और सेकंड सबसे बड़ा नाम किसका होता है जिसके नाम से डोनेशन आता है? कौन सा नाम होता है? ऑल द ट्राइबल्स जाके किसको देते हैं? समन्स, प्रीस्ट, राइट? सो इट मे बी देयर बी प्रीस्ट किंग और अ ट्रेडर्स किंग. शुरुआत आपकी वहां से होती है. बिकॉज रिलीजन, साइकिक यूनिटी. मेलिनोस्की बोलता था कि रिलीजन वर्क्स फॉर साइकिक यूनिटी, लोगों को एक करता है. उसको भूख से, हंगर से, कोई लेना नहीं है. एक नाम दो धर्म का, लोग सब भूल जाएंगे, राइट? और सच है जी, ट्रू और नॉट? अभी भी रिलीजन सबसे पावरफुल बॉन्ड है. एक नाम लो और थिंग्स विल गेट चेंज्ड. सो ईदर रिलीजन विल सुप्रीम or the commerce will supreme. So in initial time when surplus happened, either religion or the traders.
अब यहां से सिस्टम चेंज होना शुरू हो जाता है। नाउ हु विल डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस टू द पीपल? एक अथॉरिटी होनी चाहिए ना भाई। आप लोगों ने सारा के सारा ग्रेन्स लिया और एक जगह इकट्ठा कर दिया, अब उसको वापस डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? अथॉरिटी। अब वो अथॉरिटी पूरी ट्राइब है कि उसका एक चीफ है कि एक किंग है? अगर वो चीफ और किंग होगा तो क्या चाहेगा? ट्रिब्यूट। एंड दैट ट्रिब्यूट कन्वर्टेड इनटू टैक्स। इनिशियली दिस टैक्स वाज वॉलंटरी, ऋग्वेदिक पीरियड, कॉल्ड एज बलि। सो बलि वॉज, ठीक है, राजा जी के पास आए, फ्रूट दे दिए, ये दे दिए, खाना दे दिया, अनाज दे दिया, बिकॉज यू आर किंग। एंड व्हाट वाज द पर्पज ऑफ किंग? जस्ट लीड द ट्राइब इन वॉरफेयर। इतना ही काम है कि जब भी कोई वॉरफेयर हो तो आप लीड करो, अदरवाइज अपना काम करो। तो ही वॉज ए किंग ऑफ फैमिली जो लीड करती थी। बट विद द कोर्स ऑफ टाइम व्हेन सरप्लस इंक्रीज्ड, अभी लोग काम क्यों करेंगे भाई? भाई पार्ट टाइम, फुल टाइम किंग है। नाउ इज ए फुल टाइम किंग। इफ यू आर फुल टाइम किंग तो तुम्हारा पहला अटैक किस पे होगा? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर, दोज हु आर देयर टू जस्टिस, टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तुम किसको खत्म करोगे? ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, गण, विद्वत, सभा, समिति, सब साइड में। नाउ ए न्यू सिस्टम अराइज ऑफ किंग एंड द काउंसिल। पहले काउंसिल में कौन होंगे? किंग्स। किंग्स मीन्स फैमिली। सो किंग एंड किंग्स, अ किंग एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद उसके लॉयल्स। अब धीरे धीरे सिस्टम बनना शुरू हो गया। अ किंग, अ टैक्स विच वाज वॉलंटरी, अब कैसा हो गया? ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, जिसको बोल दिया शुल्क। अब टैक्स किस में कन्वर्ट हो गया? शुल्क। बलि दोगे, शुल्क भी दोगे। बलि तो मेरा अधिकार है, माई राइट। और शुल्क टैक्स है, बिकॉज आई एम हियर टू प्रोटेक्ट यू, राइट। पास्टोरल में क्या है? किंग विल बी ए किंग ऑफ ट्राइब। इस ट्राइब का, हमारी ट्राइब का हेड कौन है? कि सर ये है। हु इज द हेड ऑफ ए फैमिली? सर ये है। द फैमिली मे बी फैमिलीज हियर इन जयपुर, कोलकाता, कहीं भी हो, हेड विल बी हेड। सो इन दिस वे a head will be the head of family. But when your economy will turn to agriculture, क्या होगा? Now family is important or land is important? Land. तो now king will associate itself to the land. अब राजा ट्राइब का ना होके लैंड का हो गया। Now king is the owner or master of the लैंड। भूमि किसकी है? अभी किसकी है? गवर्नमेंट। तुम्हारे पास क्या है? लीज। लीज, लीज मीन्स एग्रीमेंट। दिस प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू एनी प्राइवेट पर्सन, इट इज गवर्नमेंट। आज नीचे से मिनरल्स निकल जाए तो कल तुमको गवर्नमेंट लेके चली जाएगी। लैंड्स बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। सेम हैपेंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। लैंड बिलोंग टू किंग। Now king will no more a king of a family or a clan. He will the king of a land. अब यहां से नई दिमाग में जागा उसके, now I am king of land. So all the people or subject which are living or inhabited of that land will be the subject of king. अब उनको नया नाम मिला subject, प्रजा, और एक हो गया राजा, the king and the subject. अब किंग की प्रॉब्लम यह है कि किंग कैसे बने? लोग रिबेल कर देंगे, रिवोल्ट कर देंगे कि भाई तुम क्यों किंग हो? व्हाई यू आर ए किंग? व्हाई वी नॉट बी, वी कांट बी ए किंग? तो फिर आता है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। नाउ दैट पर्सन सीक सपोर्ट फ्रॉम दैट पुरोहित वर्ग, एंड पुरोहित वांटेड द सपोर्ट ऑफ किंग। दोनों एक हुए, and a new theory called the theory of kingship, divine theory of kingship, that the king is the shadow of God on this earth, right? तो किंग को कुछ बोलना मतलब भगवान को कुछ बोलना है। So why at the time of ascending the throne, king performed yagna, rajasuya, vajpayi,
अश्वमेघ, और उसको आशीर्वाद कौन है? नाउ यू आर इंद्र. नाउ राजा कॉल्ड एज राजेंद्र. यू आर द इंद्र, द गॉड ऑफ हेवन, द डाइटी ऑफ हेवन. तो किसी भी घर में जो भी पहली चीज होगी वो किसके पास आएगी? जैसे हम यज्ञ में क्या करते हैं, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू, वी गिव टू द डाइटीज स्वाहा. स्वाहा कौन है? अग्नि की पत्नी है. तो ये कहते हैं जब पति को देना हो तो पत्नी को दो, तब पति को मिलेगा. स्वाहा एंड स्वधा, दो पत्नी है. स्वधा पितृमित, स्वधा स्वाहा. अग्नि, अग्नि, अग्नि जो है इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन अर्थ पीपल और कॉमन एंड द गॉड. तभी हर चीज जो ऊपर पहुंचानी हम किसको देते हैं? शरीर किसको जाता है? वेरी गुड. डेथ के बाद शरीर कहां जाता है? क्योंकि कहां पहुंचाना है? राइट. शादी में किसकी जरूरत होती है? अग्नि. फेरे किसके होते हैं? राइट, इंटरमीडिएट. तो राजा अब यज्ञ कर रहा है. सो द फर्स्ट थिंग व्हाट यू गिव टू गॉड विल गिव टू किंग. अभी तुम्हारी पॉलिटी का इवॉल्व स्टार्ट हो गया. अ किंग, परमानेंट आर्मी, अ काउंसिल, मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, डिवाइडेशन ऑफ होल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू सपोर्ट दिस टैक्सेशन. और टैक्स कौन दे रहा है? ब्राह्मण तो नहीं दे रहा, क्योंकि ब्राह्मण किसके साथ है? क्षत्रिय दे नहीं रहा. वो कौन है? किंग है. तो देगा कौन? वैश्य. शूद्र क्या कर रहा है? सर्विस. तो इफ यू वांट द टैक्स फ्रॉम शूद्रा, तो वो क्या तुम क्या लोगे उससे? सर्विस, कॉल्ड विष्ठी, बेगार. राइट. और सब ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है? वैश्य, ट्रेडर्स. क्लियर? ये क्लियर डिमार्केशन हो गया. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक वर्ण सिस्टम बन गया. टॉप पे कौन है? ब्राह्मण, पुरोहिता. उसके नीचे क्षत्रिय, द वॉरियर्स. उसके नीचे वैश्य, द ट्रेडर्स. और सबसे नीचे शूद्रा, द सर्वेंट्स, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन. नाउ देयर शुड बी नो इंटरमिंगल ऑफ सिस्टम. उसके लिए क्या करो? सिस्टम को क्लोज कर दो. किस फॉर्म में? बाय बर्थ. तो राजा का पुत्र, सुना था ना तुमने, अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा. राइट. कौन सी मूवी है? देखा, इसको कहते हैं नॉलेज वाला. इसका पेपर होए ना, सब टॉपर हुए हैं. सो राजा का बेटा राजा. इट्स अ रूल. ब्राह्मण, ब्राह्मण, वैश्य, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र. नो प्रॉब्लम विद द शूद्र. और ये शूद्र कौन है? इनहेबिटेंट, अदर पीपल. वो जो इस सिस्टम से बाहर थे, सिंपल ऑक्यूपेशनल पीपल, लेबर क्लास, उन सबको किस में डाल दिया? शूद्रास में. डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र फिक्स कर दो. ऑक्यूपेशन, एंडोगेमी, बाय बर्थ, सेक्रेड, डोंट टच. विवेकानंद जी ने कहा था ना कि आवर रिलीजन इज कंप्लीटली कंसंट्रेटेड ऑन डोंट टच मी. ये मुझे मत छू ही रह गया है. ब्राह्मण छूना नहीं, अछूत है, छूत है. कंसेप्ट ऑफ छूत एंड अछूत. सो दे पॉलिटी इवॉल्व, इकोनॉमी इवॉल्व, सोसाइटी इवॉल्व. सोसाइटी इवॉल्व नहीं कहेंगे, वर्ड अच्छा नहीं है. इट डिड नॉट इवॉल्व बिकॉज डिक्लाइन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमन, डिक्लाइन स्टेटस ऑफ शूद्रा. द होल एरा फ्रॉम 1st AD टू 17 AD. तुम एक ही चीज देखोगे, दो चीज को गिरते हुए देखोगे. किस किस को? स्टेटस ऑफ वुमन और स्टेटस ऑफ शूद्रा. द होल सोसाइटी इज इन 2 वर्ड्स. उसके लिए क्या करते जाओ? रूल्स एंड रेगुलेशंस को और स्ट्रिक्ट करते जाओ. नई नई स्मृति निकालो, लॉज निकालो. मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर संहिता. And the rules, these smritis are what? These are the laws. Laws based on religion. किसको what ought to be, what should be. तो इसमें पनिशमेंट क्या होगा, लॉ क्या है, जस्टिस क्या है, रूल्स क्या है, वो सब लिखे हुए थे. तो these were the constitution at the particular time. IPC, CRPC, ये हुआ करती थी. अब तो IPC नहीं है. क्या है अब?
भारतीय दंड संहिता पादस। अब ये है वो कि अगर ब्राह्मण एक मर्डर हुआ, अगर ब्राह्मण ने मर्डर किया है तो उसको तोल के देख लो। हाँ, ब्राह्मण ने मर्डर कर दिया, तोल के देख लो। अगर भार कम लगता है तो मर्डर किया है, उतना सोना ले लो, बात खत्म हो गई। क्षत्रिय ने किया है तो पानी में कूदा के देख लो, वैश्य ने किया है तो अग्नि का प्रमाण लेके देख लो, अगर शूद्र ने किया तो जहर दे के देख लो, अगर बच गया तो बेचारा निर्दोष है। The whole judicial system was based on this thing only. And the same system happened at the residential system also. ब्राह्मण है, घर में 4 कमरे होंगे, क्षत्रिय 3, वैश्य 2 और शूद्र बस। The system in this way, the whole system has been customized on the basis of the societal system categorization. ये तुम्हारा हिस्ट्री चलता है, बस वो पॉइंट पकड़ने हैं, कंटिन्यूटी एंड चेंज। राइट, वेदर नॉर्दर्न इंडिया सदर्न इंडिया, ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं। वाई सो? इकोनॉमी, एज आई डिस्कस्ड, जब तक इकोनॉमिकल चेंजेस नहीं आएंगे सोसाइटल चेंजेस नहीं आएंगे। अभी भी तुम इंडिया में उठा के देख लो, those area where economy has been changed or not changed, most prosperous region, adverse sex ratio, we discussed, right? The same thing happened here. So in history, what we study, these things: how polity evolved with the course of time, how economy evolved with the course of time, how society evolved in the course of time, and how these dynasties, different dynasties, contributed to the Indian history. So, right? So in metal age, as we discussed, what happened in metal age? Metal came, copper. After copper, there was a small time for bronze. What is bronze? Copper plus tin. Copper plus tin. It is called the bronze. So the bronze civilization only one, that is Indus Valley civilization. So Indus Valley civilization is called as a bronze civilization in Chalcolithic, where copper and stone was there. These people were able to use alloys, mixed metals, mixed metals. Bronze was there. So Indus Valley was bronze. Other Chalcolithic culture, Ahad, Gilund, Kaith, Savalada, Narhan, No, Bodh Gaya, then Inamgam, Malwa, Jorbe, they all will be there in different regions. The regions where they found chalco, copper. And these all were the pastoral communities, nomadic communities, right? Nomadic or pastoral communities. Right? Nomadic or pastoral communities. एक बड़ा paradox देखो. An area which became civilized, Indus Valley, the whole Indian subcontinent, but around them, you will get cultures which were more or less Neolithic in nature. Hunter, food gatherer, pastoral, right? And not so far from the Indus Valley civilization. जैसे हम आड़ की बात करते हैं, राजस्थान में कालीबंगा है, राजस्थान में उदयपुर है, कितना फर्क है दोनों में? कायथ मालवा है, मालवा, जोरबे, सब मालवा में। महाराष्ट्र इनाम गांव दहमाबाद के बिल्कुल पास में है, राइट? बट दे कुडंट डेवलप देमसेल्व्स इनटू द सिविलाइजेशन। व्हाई सो? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तभी कई बार कहते हैं कि द इंडस पीपल वर नॉट द पीपल, इंडिजिनस पीपल, दे केम फ्रॉम इजिप्ट और मेसोपोटाम, वहां से आए थे, बट ऐसा नहीं था। इंडिया में वही लोग हैं जो 6th AD में रहते थे, हम ही उन्हीं के लोग हैं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है। द सेम थिंग्स हैपन, बट विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। Indus Valley adopted, other did not adopt. So they lived in the same era, Neolithic. And these people, more than Iron Age, इतने एडवांस हो चुके थे। So metal में we shall discuss about the, so what we studied, stone, chalco, ब्रॉन्ज, और उसके बाद कौन आता है? आयरन, राइट? स्टोन एज, पैलियो, मीजो, नियो, कैल्को,
कौन सा आया? अदर कैलकोलिथिक। ब्रॉन्ज में कौन आया? इंडस वैली। एंड आयरन में आगे कौन आ गया? एक तो आ गया वैदिक और सेकंड आ गया साउथ इंडिया मेगालिथिक। दैट वाज द आयरन वन। और उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज होती है, राइट? जैसे मैंने बताया, देन आफ्टर दिस वैदिक व्हाट विल हैपन? ये आयरन में आया। देन देयर विल बी एरा कॉल्ड एज Mahajanpadas. In Aryan period, in Rigvedic period, the area time क्या होगा आपका? 1500 BC to 1000 BC. This is Rigvedic period. Later Vedic will be 1000 to 600 BC. This is called the later Vedic period. Indus, that is 3500 to around 1600 BC. और कई बार 1500 भी था। यह है इंडस वैली कल्चर। और इससे पहले कौन आएगा 3000 तक? नियो, राइट? सो इंडस वैली, ऋग्वेदिक, लेटर वैदिक, और इस 600 बीसी के बाद आता है एरा ऑफ महाजनपदाज। कब से कब तक आ रहा है? 600 to 300 BC. This is called second urbanization of India. Urban revolution of India, the era of Mahajanpadas. And this era is called as an era of intellectual revolution. Intellectual revolution. Buddha, Mahavira, Makri Gosala, Ajit K. Skimlin, right? Then we have Purana Kashyap, all Nigantanath Putta, all will be here. Then area, when Ashoka was there, in India there were 66 different sects were in existence. आज भी नहीं होंगे इतने। 66 different sects थे उस टाइम में, at the time of Ashoka, 268 BC. As I told you, it was a golden age for sannyasins, right? Mahajanpadas. After Mahajanpadas, a great empire started called as Rest Empire. Maurya, not Kshatriya, were Sudras, humble origin, but called as Maurya, Mauryan empires. Age, वही same 321 BC to 184-85 BC. Right? These were the Mauryan empires. ये हमारे पढ़ने का सबसे बड़ा जगह है, because first time each and every segment of state has been organized. The king, the council of ministers, right? Then the central administration, local administration, village administration, officials, everybody was organized. Taxation system. Why there is so many things? Taxation. मौर्यों में हर चलती हुई चीज पे टैक्स था। जो चीज हिल रही है उस पे टैक्स है मौर्यंस में। Right? Mauryans. And after Mauryans, the time is called as a time of fragmented polity era. कहां आ रहा है? नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया। नॉर्दर्न में कौन आ रहा है? ग्रीक्स, सकाच, कुशानास, पार्थियंस। नॉर्दर्न इंडिया, राइट? कहां से? फ्रॉम गंधारा टू पाटलिपुत्र, द नॉर्दर्न बेल्ट। इसमें कौन आ रहा है? ये लोग आ रहे हैं। यहां बीच में कौन आ रहा है? आंध्रा में कौन आया?
सातवाहनाज, राइट। और नीचे कौन आ रहा है फार साउथ में? यस। और इनको बोलते हैं तीनों मिला के, क्या बोला तुमने? संगम एज, एज ऑफ संगम लिटरेचर। संगम मीन्स असेंबली, राइट। द लर्नेड पीपल इन साउथ इंडिया, राइट, in every 10 to 20 years they organize in a summit और सम्मेलन जिसको बोलते थे संगम। और वहां पर वो क्या करते थे? all whatever they have written उसका सारा पाठ होता था। तो that is called, and that is 300 AD to 300 BC to 300 AD. That was 300 to 300. हाँ sure please dear. हाँ, जो हम अभी कर रहे हैं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, नॉट इंडिया, एवरीथिंग। if they term discuss, it means now we need to write positive negative both of that particular point, both facets of the coin। तुमको दोनों लिखने हैं। anything what they write, if they discuss the role of governor in today's फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। अब पहले तो उसका पॉजिटिव, देन व्हाट प्रॉब्लम्स और इश्यूज आर देयर विद द गवर्नर नाउ। जैसे हम कहते हैं दे आर बाइस्ड टू द सेंटर, राइट। अभी 3 बार उठा मुद्दा, दे आर बाइस्ड टू द सेंटर। तो ये हम वहां लिखेंगे, इन सम स्टेट्स इट हैज बीन कंप्लेन्ड दैट गवर्नर्स आर अ लिटिल बिट बाइस्ड टू द सेंटर। इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, बिकॉज द स्टेटस ऑफ गवर्नर, राइट। अभी एक क्वेश्चन पूछा था बिहार में सबोनेट में, डू यू थिंक दैट गवर्नर इज द पपेट इन द हैंड ऑफ सेंटर गवर्नमेंट? भाई साहब 2 महीने की जेल हो गई एग्जामिनर को। द स्टेटस ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर पर आप ये क्वेश्चन पपेट वर्ड यूज नहीं कर सकते। एनी रैंडम टॉपिक। यूपीएससी जस्ट वांट टू नो वन थिंग, प्रोसीजर बेटा। यस, किसी भी चीज को लिखने से पहले, डिस्कस करने से पहले समझना है दैट वी आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, सो वी आर राइटिंग इन सम बाउंड्रीज, लिमिटेशंस, वी कैन नॉट क्रॉस दिस। नाउ वी आर नॉट कॉमनर्स कि खड़े हो कह दिया मोदी चोर है या राहुल बेकार है या वो पप्पू है। नो, वी कैन नॉट से, नहीं कह सकते, बिकॉज नाउ वी आर नॉट कॉमनर, बिकॉज यू आर बिकम पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस और बीजेपी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ध्यान रखना, तुम्हारा डिस्कस बहुत जेन्युइन होना चाहिए। कभी लखनऊ की आवाज सुना है? गाली भी बड़े प्यार से देते हैं कि भाई साहब आपकी शख्सियत इस ग्रह से मेल नहीं खाती, आपको दूसरे ग्रह में बस जाना चाहिए। बट कड़े प्यार से कहा, तू इसके लायक नहीं है, बट कहने का तरीका जो है दैट चेंज, दैट हैपेंस हियर आल्सो, राइट। डिस्कस मींस गिव ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ए क्वेश्चन, वॉट एवर। जैसे हम एक बोलते हैं स्पाइस, जब हम मेंस की राइटिंग करेंगे ना तो हम इसको सुनेंगे, सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट, एथिकल, ये सारे पॉइंट्स हमें देने हैं किसी भी टॉपिक पर, जिसको कहते हैं अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। अभी हमने इंटरडिसिप्लिनरी देखा, ये है मल्टी डायमेंशनल। इज समबडी आस्क अबाउट एनीथिंग अबाउट इंडिया, के इंडिया में करप्शन का क्या है, इफ वी डिस्कस अबाउट द करप्शन, राइट, द इश्यू ऑफ करप्शन इन इंडिया, तो उसका कोई एक डायमेंशन नहीं है, सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिकल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, एथिकल भी है ना। पॉवर्टी इकोनॉमिक है, पॉवर्टी क्या है बताओ? सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, क्या है? पॉवर्टी इकोनॉमिक है, पक्का। हम पढ़े ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इकोनॉमिक डिवीजन एक सोशल डिवीजन है। शूद्र कितने कमरे बना सकता है? अब ये पॉवर्टी सोशल है कि इकोनॉमिकल है? सिंपल पूछ रहा हूं, सोशल है। एवरीथिंग। इन्वायरमेंटल बताओ, तुम एक डेजर्ट में रह रहे हो, कोई रिसोर्स नहीं है, राइट। अब बता पॉवर्टी इकोनॉमिकल है कि इन्वायरमेंटल है? राइट। मैं पॉलिटिकल हूं, तुम्हारे पास खूब पैदा होता है, मैं सारा उठा के ले जाता हूं,
अब बता पॉलिटिकल है कि इकोनॉमिकल है, राइट? दिस इज कॉल्ड द मल्टी डायमेंशनल वे. Sometimes it is said poverty, you cannot eradicate poverty on the basis of economy only. You need a multi-dimensional approach. एक आदमी ब्रेड बेच रहा है, तुम जाके बोलो भाई ब्रेड के अलावा कुछ और बेच लो, कि नहीं भाई अपने को ब्रेड ही सूट करता है, पूरी जिंदगी गरीब बना रहेगा. साइकोलॉजिकल, राइट? अब तुमको एक नारा दिया गया, मांग के खाइबे मस्जिद में सोइबे, न लेने को एक न देने को दो. ले भाई साहब, नहीं खाना नहीं कमाना. अब हमारे उधर शहरों में होता है ना, बंदे ने पूरे दिन में 500 रुपए कमाए, आके सो गया, बंद काम बंद. आप जाके कहो सच चलना है. मैं तुम छोटी सी बात बताऊं, मैंने बीकानेर, वहां उबर स्टार्ट हुआ, मैं घर पे बैठा था, मैंने कहा चलो चलते हैं. मैंने उबर वाले को कॉल किया, दोपहर को 2:30 बजे थे. मैंने कहा सर वो उबर बुक किया, कॉल किया, उसका बोला हाँ क्या है. मैंने कहा सर वो गाड़ी बुक किया. तो चलना है? नहीं चलूंगा. अरे मैंने कहा आपने बुक किया, इच्छा नहीं है. तो मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम है, कर दे, कंप्लेन कर दे. इच्छा कौन 5 बजे बाद उठेंगे? भाई साहब आप क्या कर लोगे? साइकोलॉजिकल. तो यू नीड टू चेंज ईच एंड एवरीथिंग टू इरेडिकेट पॉवर्टी. अब आप गांव में जाइए, रात को 10 बजे तक बंदा दूध का काम करेगा, 10 से 3 तक ताश कूटेगा, प्लेइंग कार्ड्स खेल रहा है. आप कहो ना कुछ काम कर ले, क्यों भाई, क्यों? तो अपना काम कर यार. यू कैन नॉट चेंज. 2017 में क्वेश्चन आया था, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तुमको इस इंडिया की यूजलेस पॉपुलेशन में, राइट, केयरलेस एंड यूजलेस पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे डाइट करोगे? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हाउ विल इट टेकल यूजलेस एंड केयरलेस पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया? अब दोनों में फर्क देखो, यूजलेस एंड केयरलेस. केयरलेस वो है दोज हु आर स्किल्ड, एबल्ड but do not want to work. Useless, not skilled, unskilled, cannot. How you will tackle that? Because these people are burden, right, over the productivity of a society. अब तुम उनको कैसे टैकल करोगे? यही सिस्टम है यार. हिस्ट्री यही बताती है कि आप टैकल कैसे करते हो. अब गांधी जी को उठा के देखो, जरा उनका मूवमेंट देखना. मूवमेंट बनाते हैं कि घर में जो बड़े बूढ़े बैठे हैं चरखे काटे, कुछ नहीं करना, दिन भर क्या करना है? आपको और कुछ नहीं आता ना, बस घुमाए रखो. तुम कौन हो? आई एम 5 years old. ठीक है, एक काम कर, झंडा पकड़ और पूरे गली में चक्कर निकाल. यू आर ए यूथ, एक्टिव पार्ट ले. यू आर ए वुमन, पिकेटिंग करो. जाओ शराब की दुकानें बंद कराओ. Now each and every member of the society or family is indulged with the movement, right? अब घर में बच्चा आके देखेगा दादाजी चरखा काट रहे हैं, बच्चा वो लेके दौड़ रहा है टोपी पहन के, right? Mind has been changed psychologically. गांधी जी was very clever person. उनको पता था without mass movement आप कुछ नहीं कर सकते. So that was the person who transformed a class movement into mass movement. That was the biggest contribution of Gandhi ji to this freedom movement. Swadeshi movement was a very great movement, but it was a class movement only, concentrated to a place. But he was the person in non-cooperation movement from here to Assam, Bengal, जिस दो इंडिया में कभी थे ही नहीं, उनको एक कर दिया उसने. Right? In रियासत people also, in princely states, आपका non-cooperation movement चल रहा है. It never happened. That was the strategy of Gandhi ji. तो ये बड़ी चीज है. तो संगमेश was there, right? Now, हाँ बोल. Fragmented polity means there are 2 types. First is called the unified, where you have one dynasty ruling over a larger area, like Mauryans. Mauryan का कहां तक है? From Afghanistan to कर्नाटका, राइट? वसदी कर्नाटका में तुमको अशोक का अभिलेख मिलता है, ब्राह्मी में, राइट? सो मौर्यन एम्पायर वाज अ वास्ट एम्पायर which covered entirely the Indian subcontinent. But afterwards a new rule started where small territories were there under the one dynasty. Saka, Kusana, Parthians, Shunga, Kanwa, right? Satavahanas, Chera, Chola, Pandya. The whole polity of India has been fragmented.
And same happened in 18th century again, after Mughals. Again the fragmented polity. So where you will find the same question in 2nd AD, 3rd AD, you will find the same question after Maurya. Post Maurya, fragmented polity, and post Mughals, fragmented polity, 2 times. Where Britishers conquered, and here Gupta will be again. Right? So after this, a new empire begins by Guptas. From 320, right? They begin from the 320 to 550 AD. The greatest ruler. Right? After Maurya, the second great were the Guptas. And again, the same thing. After Gupta, only one ruler in North India. That was Harsha. And in South, that was first Chalukya, then Pallava, and finally Chola. यहाँ ये खत्म. नॉर्थ इंडिया का लास्ट कौन रूलर रहा? हर्षा. 647 AD, 606 to 647, खत्म. And that was the last North Indian ruler which unified the North India completely. And then again the era of fragmented polity, a new name called feudalism. And this feudalism was dominated by a new age of Rajput. So from 750 to 1200 era, this is called pre-medieval or Rajput age. Chauhan, Parmar, Solanki, Gehedwal, right? Then you have Anhidwal, Saina, Kalchuri, Gange. All these will be there. और उनका आपस में प्रॉब्लम, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. और उसका फायदा किसने उठाया? मुगल्स नहीं आए हैं, मुगल्स नहीं आए हैं, तुर्क्स आए हैं. कौन आए हैं? तुर्क्स एंड तोजिक्स. हम डिस्कस करेंगे एट द टाइम ऑफ मिडीवल. तुर्क, तोजिक, अफगान, ये 3 लोग पहले देख लेंगे. तुर्क, तोजिक, अफगान. एरिया कौन सा है? अफगानिस्तान एंड रसिया. छोटा छोटा. जो अफगानिस्तान को क्या बोलोगे? अफगान. जो तुर्कमेनिस्तान में क्या बोलोगे? तुर्क्स. तजिकिस्तान में तोजिक. मंगोलिया में मंगोल्स. तुर्क प्लस मंगोल इज इक्वल टू मुगल. तुर्क प्लस इज इक्वल टू मुगल्स. सो मंगोल्स उनकी मदर साइड था, तुर्क्स उनकी फादर साइड था. दोनों मिलकर क्या बन गए? मुगल्स, मोगल्स. एंड दे वर नॉट रेस्पेक्टेड पीपल इन द एरिया ऑफ अफगानिस्तान और कंधार. उनको रेस्पेक्टेड नहीं माना क्योंकि उनको मिक्स ब्लड कहा जाता था. तुर्क्स प्योर ब्लड मानता था. तुर्क्स, तोजिक, दीज पीपल आर कॉल्ड अमीर्स. इनको अमीर बोलते थे. एंड द होल सल्तनत पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय दीज अमीर्स एक्सेप्ट खलजीज. खलजी कॉमनर्स है. खलजी जो थे वो कॉमनर्स थे, सिपाही थे, सिपॉय थे. एक जैसे हम ये शूद्रास बोलते हैं ना, वो वहां पर एक लोअर कास्ट आते थे, पास्टोरल कम्युनिटी था. When they became king ना, the whole system changed. तभी देखो तुम, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद सब खत्म हो गया. Started from 1390, 1420 में खत्म, just 30 years खत्म. And they were never ever respected by the Turks or Tajiks or Amirs. So after Gupta Arsa, Rajputats, a new age started that is called the era of medieval. Right? That was divided into 2 parts. First is called as Sultanate and second is called as Mughals. Right? The area of Sultan, ये कौन लोग थे? Sultanates. Look what happens after the Islamic revolution in the whole Middle East. What happened? एक नई वॉरियर क्लास पैदा हुआ है. कौन? जो अपने आप को क्या बोल रहा है? द वॉरियर ऑफ गॉड. राइट? जिसका लिए एक वर्ड आता है जिसको आप क्या बोलते हो? गाजी. सो गाजी वर द होली वॉरियर्स, राइट, हु मेड वॉर
on the basis of religion, to spread the Islam everywhere. So these were the holy warriors, and they always fought in the name of Islam. So these people called as Ghazi. Second, those people who were in search of money, right? And these all Turks were, they all belonged to the Central Asia. They were very good people in cavalry. बहुत बढ़िया घोड़े, because all the horse was there, bidding सारी वहीं थी. So good horsemen. Second, the whole Afghanistan area is a belt of iron. जो हिंदू कुश है, किरथार है, सुलेमान है, it is the belt of iron. And iron smelters will be there. दो great quality swords तुमको वहां मिलेगी. कट्टप्पा की मूवी देखिए, बाहुबली फर्स्ट. एक बंदा आता है तलवार लेकर कट्टप्पा के पास, आता है ना, और अपनी तलवार दिखाता कि इतने मुल्क में आज तक किसी ने इसको मना नहीं किया. And that was the person from Turkmenistan. Those people were traders of these swords, right? सबसे अच्छी swords उनके पास हुआ करती थी. तो swords है, horses है, horsemen है, गाजी है, because they have a spirit of Islam. Along with that, उनको पैसा चाहिए. Those warriors were free there. तो जो भी इधर इंडिया की तरफ आता था, वो उनको अपने यहाँ पे साथ ले आता था. मोहम्मद गजनी ये सब इन्हीं वॉरियर्स को लेकर आया. मोहम्मद गोरी, राइट. एंड देयर वाज अ टाइम जब बाबर ने भी इसको यूज किया, एट द टाइम ऑफ खानवा, व्हेन बाबर फॉट अगेंस्ट दी राणा सांगा, तो उसने अपनी सारी शराब फेंक दी और कहा मैं सिर्फ आई एम ए होली वॉरियर, इस्लाम के नाम पे लड़ूंगा. एंड सेकंड अकबर 1562 इन चित्तौड़, वहां जाके अपने आप को गाजी घोषित किया. द फर्स्ट टाइम इन द नेम ऑफ इस्लाम उसने अपने आप को गाजी बोला. एंड चेंज द नेम ऑफ चित्तौड़ एज खिजराबाद. इट हैपेंस एवरीवेयर. तो ये जो वॉरियर क्लास इनको मिली, इस क्लास के साथ ये इंडिया की तरफ मूव कर गए. और इंडिया में क्या था? फ्रेगमेंटेड पॉलिटी. द राजपूत एज एक दूसरे के खिलाफ, चौहान इधर, राइट, तो सिसोदिया उधर, सिसोदिया उधर, तो राठौड़ इधर, राठौड़ इधर, तो गैडवाल इधर, अहिनवाल इधर, चालुक्य इधर, सोलंकी इधर, सबको एक एक करके उड़ा दो. एंड देन सल्तनत पीरियड फ्रॉम 1206 टू 1526, फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक टू इब्राहिम लोदी. ये, एंड देन मुगल्स केम हियर फ्रॉम 1526 टू 1707. That was the time of Mughals. तो एक सिंपल क्रोनोलॉजी तुम देखो तो इस तरह से जाती है. तो वी स्टार्टेड विद द स्टोन एज. कब है? 5 लाख टू 3 लाख BC. पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्को, ब्रॉन्ज, आयरन. ऑन द बेसिस ऑफ, हमने किस बेस पे किया हुआ है? टेक्नोलॉजी ना. पहले स्टोन टेक्नोलॉजी, टूल टेक्नोलॉजी थी, फिर कॉपर आया, फिर ब्रॉन्ज आया, और फिर आयरन आया. तो दिस वाज द टेक्नोलॉजिकल कैटेगराइजेशन. देन वी हैव द ट्राइबल सिस्टम इन इंडिया कॉल्ड एज आर्यंस. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है माइग्रेशन थ्योरी, दैट आर्यन डिड नॉट बिलोंग टू इंडिया. बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि आर्य हम थे कि आर्य आए. एक्चुअली ऑल द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज, उन्होंने एक ही चीज प्रूव की कि देयर वर नो इंडियन नेटिव्स. सब बाहर से आए, इंडिया का कोई भी नहीं है. आर्यंस नहीं है तुम्हारे, इंडस वाले तुम्हारे नहीं है, राइट. उसके बाद में आर्यन तो वैदिक हो गए, फिर सक्का, कुशाणाज, हुणाज, दे ऑल केम इंडियन सेटल्ड. देन तुर्क केम इंडिया सेटल्ड, मुगल केम इंडिया सेटल्ड. इंडियन कौन है? India is just a geographical identity. What they proved, that India was just a geographical identity, that's all. No ethnical or racial identity at all. यहाँ कोई इंडिया का था ही नहीं. और हमने वही पढ़ा है. आर्यन थ्योरी, इन्वेजन थ्योरी, सक्का, कुशाणा, हुना, सबकी थ्योरी पढ़ी ना, कि इन्वेडर्स आए. उल्टा भी तो हो सकता था. अगर मैं इसको उल्टा करूं तो, आउट ऑफ माइग्रेशन थ्योरी करूं तो,
कि आर्यंस फ्रॉम इंडिया वेंट आउटसाइड। ये भी तो हो सकता है कि जो आप बोगास कोई की बात कर रहे हो, तुर्क में हमको इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, मिटाइट्स है, हिटाइट्स है, ये यहां से भी तो जा सकते हैं। कुछ नहीं है, जो मानना वो क्या है, दैट आर्यंस वर इन्वेडर्स, केम टू इंडिया, and what Vedic culture we have, that is not the indigenous culture, that culture borrowed by we people, right? हमारी नहीं है, वेद हमारे नहीं है, वैदिक हमारा नहीं है, उनके हिसाब से। क्लियर? सो आर्यंस, तो हियर आर्यंस आ गए, उसके बाद में हमारा पूरा सिस्टम स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट वैदिक में 2 पार्ट है, 1500 BC 2000 ऋग वैदिक, देन लेटर वैदिक। 600 BC में कौन आ जाता है? द इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन, महाजनपदाज एरा, 600 to 300 BC। और उसके बाद कौन आता है? द ग्रेटेस्ट मौर्याज। आफ्टर देन पोस्ट मौर्याज कौन है? फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, नॉर्थ एंड साउथ। उसके बाद कौन आता है? गुप्ताज। गुप्ता के बाद राजपूत, हर्षवर्धना, एंड देन राजपूत एज कंप्लीट। देन मिडिवल में कौन है? सल्तनत एंड मुगल्स, एंड देन रीजनल किंगडम, छोटे छोटे, विजयनगर, बहमनी बीच में छोटा सा, एंड देन वी हैव द मॉडर्न इंडिया। ये हमारा छोटा सा फ्रेगमेंटेशन था। अब देखो थोड़े से इसके क्वेश्चन देखो, तुम समझ पाओगे कि सिस्टम क्या था। हाँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। नाउ सी व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एंड, दो चीज ध्यान रखना, वैदिक। अब तुमसे मैं पूछूं व्हाट वाज द वैदिक सोसाइटी, कैसी थी? ट्राइबल सोसाइटी कैसी होती है? इगलिटेरियन, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर मैं पूछूं कि बेटा हो या बेटी हो फर्क पड़ेगा? वेरी गुड। कास्ट सिस्टम, क्लास, सिंपल सोसाइटी, सिंपल सिस्टम, राइट? सेकेंड इज दोज पीपल विच आर ट्राइबल लिविंग इन सिंपल एरियाज सराउंडेड बाय द नेचर, राइट? फॉर देम विच इज द गॉड? नेचुरल वर्सेस आदित्य, वरुणा, फायर, Indra means rain. So all the technological phenomena, all the geographical phenomena, वो सबकी पूजा करेगा। इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुणा, अग्नि, यम, अरुण, वरुण, सूर्य, ये उनके देवता। क्लियर? और रिलीजन को माने कैसे? भाई धर्म में क्या होता है? एक निशान, एक स्थान और एक महान, एक निशान, एक स्थान, 3 चीज होता है। महान कौन है? नेचर गॉड। स्थान कौन है? टेम्पल्स नहीं है तो क्या है? यज्ञाच। क्या है? यज्ञ। तो वो लोग क्या करते हैं? डोमेस्टिक यज्ञ। डोमेस्टिक यज्ञ, और यज्ञ का मतलब कहता है सेक्रीफाइस। द यज्ञ में एक वर्ड आता है बलि। बलि मीन्स सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस नॉट द एनिमल, not the animal. Whatever you offer to the fire is called as bali. इसको बाद में रॉन्ग टर्म में ले लिया गया कि बलि मतलब एनिमल्स को मारना, नहीं। बलि का मतलब होता है whatever you offer to the fire, the holy fire. तो रिलीजन सिंपल है। डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर आर स्टिल प्रिवेलेंट इन सोसाइटी? है भाई, बहुत सारे हैं, एक थोड़ी है। तुम्हारी पूरी सोसाइटी में फादर का है, पैट्रियार्की का सिस्टम है, राइट? रिलेशंस है, उसके बाद में तुम्हारा सोसाइटल वेब है, सब इसी पे तो टिका हुआ है तुम्हारा, वैदिक पे तो है। अगला क्वेश्चन क्या है? वो हम गूगल में करेंगे। अब ये बताओ ये क्या है? टेम्पल्स का देखा था, लॉ एंड फिगर हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता एंड चोला। गुप्ता का मेन चीज क्या है? लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, बहुत पावरफुल है। आर्यभट्टा, वराहमिहिर कहां हुए हैं? भास्कराचार्य, नागार्जुना, राइट?
उसके बाद में दिग्नाग, उसके बाद में जितने भी तुमने देखा, कौन सा, जितने भी बड़े बड़े आपको पोइट्स और राइटर्स ऑथर्स मिलेंगे सब गुप्ता मिलेंगे। और चोला का क्या है, चोला तो खैर बहुत बड़ा है, कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा। देखें मूवी देख रहे PS1, यही तो है, चोला ही तो है, पन्नासेलियम, राज राजेंद्र फर्स्ट। हाँ, भक्ति लिटरेचर, रॉक कट आर्किटेक्चर, पाला, इंडियन फिलोसॉफी टेस्टिंग एंड कंसीडरिंग शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया, वेरी गुड। पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज और मिड डिफेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज। पर्शियन कहां की है, फारसी। फारस कौन था, ईरान, बाद में वो सब जगह फैल गया, पूरे अफगानिस्तान और अरब एरिया में। पर्शियन लिटरेचर, उनके बारे में पढ़ेंगे भाई साहब, कौन थे, हसन निजामी, शम्स शिराब हफीफ। उसके बाद में बंदा अपना ये अमीर खुसरो, बहुत बड़ी बात, खुसरो ने तो 9 लिखे हैं, राइट। उसके बाद में तारिक मुबारक शाही, बर्नी, याया बिन अहमद सरहिंदी, ये सब आएंगे पर्शियन में। फिर हाईलाइट द सेंट्रल एशियन ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन गंधारा आर्ट, इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज, चाइनीज एरर ट्रेवलर्स। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा तुमको। हमने कहा ना व्हाट इज सैड, व्हाट इज रिटर्न। चाइनीज में कौन है, उमिनसांग, फायान, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अरब में अल मसूदी, अल बरूनी और इब्न बतूता, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भक्ति मूवमेंट, गुप्ता निमिस्टिक आर्ट, अर्ली बुद्धिस्ट, ये इस बार क्वेश्चन 2023 के प्री में आया हुआ था। अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट, कृष्णदेव राया, ये हम कर चुके हैं। मिजोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, भीमबेटका, मिर्जापुर। द मिजोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द कल्चर लाइफ बट ऑल्सो a time aesthetic sense compared to modern painting. Modern painting, एक एस्थेटिक सेंस। तो हम ये नहीं कह सकते एस्थेटिक सेंस जो है विद द टाइम आता है। मिजोलिथिक कब का टाइम है इंडिया में, मिजोलिथिक कब का टाइम है, दैट इज फ्रॉम 8000 to 3000 BC, राइट। वैसे 7000 से शुरू होता है, सिर्फ 4 मतलब 6-7 हजार साल ही रहा है। दैट वाज द मिडिवल माइक्रोलिथ का टाइम। भीमबेटका सबसे इंपॉर्टेंट है, मिर्जापुर बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचगनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे व्हेन यू विल सी ऑल दी पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स ना, उसमें सिर्फ ये हंटिंग और ह्यूमन नहीं है, एस्थेटिक फॉर्म में मेडिटेशन कर रहा है, कुछ और सोच रहा है, लाइफ बियॉन्ड द लाइफ सोच रहा है। ये है क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखो 2014, कितना अच्छा क्वेश्चन था। टू व्हाट एक्सटेंट द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। जयपुर is the very best example. Grid pattern. What is grid pattern? Cutting on right angles. All the roads cutting on right angles 90 degree. हमारा देख लो 9/11 जयपुर, पंडित विद्याधर शास्त्री ने बसाया है। छोटी चौपड़ जो है दैट इज द सेंटर, और वहां से 9 रोड्स यूं है और 11 यूं है। दिस इज कॉल्ड द ग्रिड पैटर्न, और ये इन्होंने बनाया 9:11, राइट। गंधारा, तक्षशिला, सूफिज्म, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, संगम लिटरेचर, तांडव सुना है ना, क्या है तांडव? शिवा डांस किसने बनाया था? एक्चुअली दिस डांस वॉज इमेजिन एंड कंपोज्ड बाई आवर sage or rishi called as Tanda. Tanda. And the dance performed by Rudra is called in the name of this rishi Tanda, Tandava. Right? And ये डांस डिस्ट्रक्टिव डांस है, ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है। तांडव करेगा दुनिया खत्म होगी। तो क्वेश्चन का था जिसके तांडव डांस is recorded in the early inscriptions. And Chola architecture represent a high watermark in the evolution of temple architecture. द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर में चोल सबसे ऊपर है।
राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर है, बहुत बड़ा है इनका। गंगई कोंचोलापुरम टेम्पल है, रंगनाथम टेम्पल है, विश्वरूपम टेम्पल है, बेस्ट राइट।